الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز مصلیان کرام، ہم نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کو اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ایمان لانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا، ان کے نفع کا ایک زبردست فارمولہ اور نسخہ بتایا ہے۔ اللہ نے جتنی چیزوں کی ضرورت ہمیں دنیا میں ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر ہمیں بتا دیا ہے۔ آج اگر ہم قرضے سے پریشان ہیں، رشتوں سے پریشان ہیں، بیماری سے پریشان ہیں، غریبی اور تنگ دستی سے پریشان ہیں، غرضے کی جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی تمام طرح کی مصائب اور آلام میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اور بچنے کا راستہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے، جبکہ ہر بندہ اگر بیمار ہے تو دواؤں کے تلاش میں ہے، ڈاکٹر کے تلاش میں ہے، غریب اور مفلس ہے تو مال کے تلاش میں ہے، رشتے نہیں ہوتے تو رشتوں کی تلاش میں ہے۔ اس دنیا کے اندر جس بندے کو دیکھو، صبح سے شام تک، بلاغت سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک اپنے دنیا کو اچھا بنانے کے چکر میں اور مرنے کے بعد آخرت اچھی بن جائے اس کی فکر میں سرگردہ رہتا ہے۔ چنانچہ یہ تمام کی تمام نعمتیں، چاہے مالداری ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے مکان ہو، چاہے کھیت ہو یا کھلیان ہو، کھیت کھلیان ہے تو کھیت بنجر ہے یا کاشت کے لائق ہے، غرضے کی تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، پوری امت کو ان کے توسط سے پوری مخلوق کو ایک سبق دیتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کسی بندے کو عذاب نہیں دینا چاہتا ہے، اللہ کسی بندے کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ کی ذات اطہر ان کے درمیان موجود ہو۔ تمام طرح کی عذاب، ایک بیماری بھی عذاب ہے، غربت بھی عذاب ہے، ذلت بھی عذاب ہے۔ عذاب صرف یہی نہیں کہ آگ میں ڈال کے ہمیں بھونا جائے، بلکہ تمام کی تمام وہ چیزیں جو ہمیں تکلیف پہنچا سکتی ہیں وہ سب عذاب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کے درمیان آقا علیہ السلام موجود ہوں گے تو اس قوم پر، اس مخلوق پر ہم عذاب کو نہیں ڈالیں گے۔ آج حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو نہیں ہے، ہمارے درمیان سے چلے گئے، ان کی سیرت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا مقدس نمونہ ہے، اس نمونے پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ بچیں گے۔ اور دوسرا بچنے کا فارمولہ اللہ نے بتایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اس قوم پر بھی اللہ عذاب کو نہیں ڈالتا ہے جو قوم استغفار کرنے والی ہو، جو قوم اپنے جرموں سے توبہ کرنے والی ہو، جو قوم اپنے نفس پر جنہوں نے ظلم کر دیا ہے اس ظلم سے جب توبہ کر لے اور جب استغفار کر لے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے پچھلوں کو بھی بچایا ہے اور بیچ والوں کو بھی بچایا ہے اور آئندہ بھی ہم بچائیں گے۔ صرف دو راستے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بتایا ہے بچانے کے، کہ ہم اس قوم کو بچائیں گے جس قوم کے درمیان ہمارا حبیب موجود ہو، اور ہم ان لوگوں کو بھی بچائیں گے
जो इस्तग़फ़ार करने वाले हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब, या इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़बान से पढ़ने का नाम नहीं है। इस्तग़फ़ार करते हैं हमने अपनी जिंदगी में जाने या अनजाने से नमाजें छोड़ी हैं, रोजे छोड़े हैं, तो उसकी कज़ा करें। किसी का कर्जा लेकर मार लिया है, कोशिश करें हम उसको अदा करें। किसी की जमीन हड़प लिया है, हम उसको अदा कर दें। जिन जिन का हुकूक, चाहे अल्लाह का हक हो चाहे बंदों का हक हो, उसको दे दें और उसके बाद माफी तलब करें अल्लाह से। सिर्फ जबान न चले बल्कि हमारा दिल भी, हमारे आज़ा और जवाहिर भी इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें। तो अल्लाह वादा करता है कि हमने पहलों को बड़ी बड़ी जादू हुकूमतों से बचाया है और बड़ी बड़ी मुहलिक बीमारियों से बचाया है। जहर पीकर दुनिया से आदमी बेहतरीन दुनिया में रहा है, उसको मौत नहीं आई है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इनकी बांदी ने 40 मरतबा से ज्यादा जहर दिया है, लेकिन हजरत नहीं मरे। बहुत का समय है। अल्लाह वो जात है जो शहद की तासीर को जहर से बदल दे और जहर की तासीर को शहद से बदल दे। ये कादिर मुतलक की अदना सी कुदरत है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, जिस लाइन को तुम परेशान हो, अगर जबान के साथ साथ अपने आज़ा और जवारिह से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दो, तो जैसे हमने उनको बचाया है, ज़ाहिरी बीमारियों से बचाया है, दुश्मनों से बचाया है, मसाइब से बचाया है, कर्जों से बचाया है, तमाम के तमाम आलात से बचाया है, आलाम से बचाया है, हम तुमको भी बचाएंगे। जैसे हम उनके रब थे वैसे हम तुम्हारे रब थे। हजरत हक जल्ला मजदूर अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरी जगह एक आयत के अंदर फरमाता है, कुल इन तस्तग़फिरू रब्बकुम, ऐ मेरे हबीब अपने उम्मतियों से, हमारे बंदों से कह दीजिए, इन तस्तग़फिरू, अगर अपने परवरदिगार से कोई बंदा माफी तलब करेगा तो बहुत सारे इनामात। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस लगी हुई थी। गालिबन इमाम हसन है या इमाम हुसैन, जो दोनों नवासे रसूल है, दोनों की एक मजलिस लगी हुई थी। एक बंदा आया, उसने कहा हजरत हम बहुत ज्यादा गुनहगार हैं, हमने बहुत बड़े बड़े गुनाह कर लिए हैं, हमें कुछ ऐसा बता दीजिए कि अल्लाह हमें माफ कर दे। हजरत ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। एक बंदा आया, उसने कहा हमको लड़के नहीं बच्चे नहीं पैदा होते हैं, हमारे लिए कुछ दुआ कर दीजिए, अल्लाह हमें औलाद वाली नेमत अता फरमा दे। हजरत ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। एक बंदा आया, उसने कहा हम मुफलिस हैं, तंगदस्त हैं, हम गरीब हैं, फाकों से मर रहे हैं, हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए। हजरत ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। एक बंदा आया, उसने कहा कि हमारे खेत के अंदर फसल सूख गई है, बारिश नहीं हो रही है, हजरत कोई नुस्खा बता दीजिए। आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। एक ने कहा हमारे पास पानी नहीं है, नल का इंतजाम, हमारे यहाँ भी ऐलान हुआ कि नल टूट गया है, पानी का इंतजाम, हमारे आंगन में नल हो जाए, चश्मा हो जाए जिससे हम पानी पिए। हजरत ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। तो सुनने वाले ने कहा, जो उसमें बैठा सुन रहा था, उसने कहा कि हजरत बीमार तो तमाम आए हैं, एक गुनहगार आया है, एक मुफलिस आया है, एक बांझ आया है जिसकी औलाद नहीं होती है, एक खेत खलियान से परेशान है, और एक ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी बगिया हो जाए, बाग हो जाए फल फ्रूट की, ऐसा कुछ कर दीजिए और हमें बता दीजिए कि अल्लाह हमें बाग इनायत फरमा दे। हजरत ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। तो किसी ने पूछ लिया कि हजरत मरीज अलग अलग मर्ज लेकर आए हैं और आपने दवा सबको एक बताई है। तो हजरत ने फरमाया मैंने नहीं बताई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम के अंदर वादा करता है इस्तग़फ़ार करने वालों से, कुल इन तस्तग़फ़िरू, ऐ मेरे हबीब अपने इन उम्मतियों को, हमारे प्यारे बंदों को बता दीजिए, अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा,
परवरदिगार कहता है कि सबसे पहले इस्तग़फ़ार की बदौलत तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। ये उसकी दवा है जो कहता है हम गुनहगार ज्यादा हैं। वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और जो कह रहा हमारे फसल सूख गई है, बारिश नहीं हुई है, अल्लाह कहता आसमान से मूसलाधार बारिश, और वो बारिश जो सैलाब वाली न हो, जो खेत के लिए, फलियान के लिए, जानवर के लिए, चरिंदो परिंद के लिए जो है मुसीबत वाली न हो, आराम वाली बारिश हो, नेमत वाली बारिश हो। अल्लाह वादा करता है कि हम मूसलाधार बारिश बरसाएंगे। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारी मदद करूंगा लड़के देकर और माल देकर। जो कह रहा हमें लड़के नहीं होते हैं, ये इसकी दवा है। और जो कह रहा है कि हम गुर्बत में है, परेशान है, ये इसकी दवा है। नमाज छोड़ने से गुनाह करने से सबसे पहला अज़ाब अल्लाह का ये आता है कि रोजी तंग कर दी जाती है। हमें राशन लेने की कोटे पर जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सही माने में अल्लाह वाला हम कार्ड बनवा ले तो। अल्लाह वादा करता है, ये अल्लाह का वादा है। हम जो टांगे पकड़ के इनकी भीख मांगते हैं कि 2 किलो गल्ला दे दे, हम अपना मामला अपने रब से सीधा नहीं करते हैं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह रोजी देने के लिए अपने मानने वाले बंदों को इनके दरवाजे से जलील नहीं करवाना चाहता है। अल्लाह फरमाता आओ तो हमारी तरफ, हम तो मायल का करम से कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहलवे मंजिल ही नहीं। तो अल्लाह का पहला वादा है हम रोजी की तंगी को दूर करेंगे। शर्त यह है अस्तगफिरुल्लाह की जो तस्बीह पढ़ते हो, इस तस्बीह से हमारा हाथ भी तस्बीह पढ़ने लगे। जब फावड़ा उठे अपनी मेढ़ से, तो अपनी ही खेत की छटाई हो, दूसरों की न छटाई हो। रोडें मेढ़ बन गई और मेढ़ें खेत बन गए, तो पता नहीं चलता। जब हम किसी से ले तो हम देने की भी उम्मीद रखें, ये सोच और दिल भी हमारा इस्तग़फ़ार पढ़े। हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं या फूल बिछा रहे हैं, ये हमारे कदम भी इस्तग़फ़ार पढ़े। सिर्फ जबान से इस्तग़फ़ार पढ़ने का नाम इस्तग़फ़ार नहीं है। अगर हमारे किरदार में भी इस्तग़फ़ार पढ़ लिया तो अल्लाह की कसम दुनिया में रहने के लिए खेत की जरूरत है, बाग की जरूरत है, मकान की जरूरत है, रोजी की जरूरत है, दौलत की जरूरत है, बेटों की जरूरत है। अल्लाह फरमाता है इस इस्तग़फ़ार के बदौलत सारी चीजों को हम देंगे। ये बुजुर्ग का कौल नहीं है, परवरदिगार का वादा है। कुल इन तस्तग़फिरू रब्बकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। और जिसके गुनाह माफ कर दिए गए, जिसके जुर्मों को अल्लाह ने माफ कर दिया, तो जो माफ कर दिया जाता है वो आखिरत में जन्नत में भी चला जाता है। तो उसकी दुनिया भी हसीन बन गई, गुनाहों से माफी भी हो गई और वो आखिरत में जन्नत में भी चला गया। तो दुनिया भी हसीन बनी और आखिरत भी हसीन बनी। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, परवरदिगार कहता है तुम्हारे गुनाहों को माफ करेंगे। वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और आसमान से बढ़िया वाली बारिश करेंगे जिससे तुम्हें नफा पहुंचे। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारी मदद करूंगा बेटों को देकर, औलाद को देकर और माल देकर तुम्हारी मदद कर दूंगा। वयजअल लकुम जन्नातिन व अनहारा, और तुम्हारे लिए चश्मे, बागात और चश्मे, ये चश्मा आंख वाला नहीं बल्कि चश्मा पानी वाला नल देंगे। अल्लाह स्विमिंग पूल दे देंगे। ये चश्मा वही है जो हम अपने आंगन के अंदर घरों में बनवाते हैं। अल्लाह फरमाता है इसको हम दे देंगे। वयजअल लकुम जन्नातिन व अनहारा, अल्लाह फरमाता, बताओ अब इसके अंदर कौन सी जरूरत ऐसी रह गई जो हमारे को हमको जरूरत है? माल मिल गया, गुनाह माफ कर दिए गए, बच्चे मिल गए, माल में घर भी है। रोजी का मतलब सिर्फ रोटी नहीं होता है, रोजी का मतलब सुखना भी होता है, रहने की जगह भी होती है। अच्छा मकान मिल गया, अच्छा बिस्तर मिल गया, अच्छा खाना मिल गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया है कि अगर ऐसा इस्तग़फ़ार कर लिया जिसको इस्तग़फ़ार कहा जाता है, सच्चे माने में हमने जितनी नमाजें छोड़ी हैं उतनी नमाजों की अदायगी कर दे। अल्लाह का कर्जा है, नमाजें
छुट्टी है तो बेहतरीन तरीका है, हमारी जुहर छुट्टी है तो सुन्नत पढ़ने के बाद फिर 4 रकात बताया न जाए किसी से। जो गुनाह हो जाए अल्लाह ने छिपा दिया है तो उसको खोल के डींगे न मारो कि इतनी नमाज छोड़े हैं, कजा पढ़ी है, छिपाओ उसको। अल्लाह को नाराजगी होती है कि मैंने अपने बंदे की बेइज्जती को छिपा रखा है, इज्जत वाला बना रखा है, खुद अपने मुंह से जो है बेइज्जत बना फिर रहा है। तो हमारी जिंदगी की जो जोहर कजा हुई है, अल्लाह ये 4 रकात बैठे हैं बात कर रहे हैं बकवास, उससे बेहतर है जो हमारी बालिग होने के बाद से नमाज़ छुट्टी उसकी कजा कर ले। और पैसा लेन देन का है, मखलूक का जितना कर्जा है मखलूक का दे दे। मुसीबत क्या है इसमें? जिसने कर्जा लिया, देने की उम्मीद रखी कि इस कर्जे को हम देकर मरेंगे, तो अल्लाह उसकी पहले अदायगी करवाता है, बाद में मारता है, बाद में बुलाता है। और जो लेते वक्त बेईमानी की नियत कर ले तो कोई गारंटी नहीं है। और कर्जदारों की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ने का हुक्म है जब तक अदा न कर दे, इसको ऐसे फेंक दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम ने जनाजा नहीं पढ़ाया। आखिर में चूंकि शफीक है, रहमतुल लिल आलमीन है, आपने आखिर में फरमाया है मैं उसका वारिस हूं जिसका कोई वारिस नहीं है, ला वारिसुन मन ला वारिस लहू। अदा करेंगे, लेकिन कैसे? जब हम पहले ही से ताकत है, सबब है देने की, हमारे पास उसात है, फिर भी टाल मटोल करते हैं। तो अगर अल्लाह के हक को भी अदा करें और बंदों के हक को भी अदा करें तो इंशाअल्लाह हमें माल भी मिलेगा, औलाद भी मिलेंगे और बीमारियां दूर रहेंगी हमसे। अल्लाह ने इसी में पूरी उसात का वादा किया है। और बीमारियां उसात वाली नहीं होती हैं, तंगदस्ती वाली हो, तंगदस्त कर देती हैं, फकीर और मुहताज कर देती हैं। इसलिए हमारी हम आज से तौबा कर लें। और सबसे बेहतरीन कुरान की आयत है खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, बेहतरीन खता करने वाले, बेहतरीन गुनाह करने वाले, बेहतरीन जुर्म करने वाले वो हैं जो तौबा करने वाले हों। बताओ कोई मुजरिम को बेहतर कहता है? कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत पर। अल्लाह फरमाता है बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो हमारे दरबार में आकर कह दे अल्लाह हमने अपने नफ्स से बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है। एक बड़ा जबरदस्त वाकया है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर बैठकर एक अल्लाह के बंदे ने, एक देहाती था, वो तहजीब से नाशना था, कल्चर नहीं पता था, इल्म नहीं था, लेकिन आया और सलाम किया और आपके रोज़े अक़दस पर बैठकर चंद जुमले कहे थे और फिर उठकर चला गया था। बशारत दिलाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ा कर उसे बुलवाया है और बशारत दिलवाई है। और उसके देहाती वाले जुमले, मेरे आका का जो रोजा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह देख कर आए हैं, ये आका का रोजा है। एक पिलर ये है, एक पिलर वो है जो जन्नतुल बकी के अंदर वो पिलर है। उस पिलर पर कोई हदीस नहीं लिखी है, कोई कुरान की आयत नहीं लिखी है और कोई बुजुर्ग का कौल नहीं लिखा है। उस देहाती की बातों को आज भी लिखा हुआ उसी पिलर पे, उसी जमाने से लिखा चला आ रहा है, आज भी लिखा है। कौन सी बात है? इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन जो बंदा रुजू होकर अपने परवरदिगार की तरफ आ जाए तो अल्लाह कहता उससे बढ़िया कोई है ही नहीं। जिसकी तहज्जुद न छूटी हो, जिसकी नमाजें न छूटी हो, जिसके रोजे न छूटे हो, वो तो बिल्कुल सीना ताने घूम रहा है कि हमसे बड़ा कोई नेक नहीं, लेकिन जो जुर्म करके आए हैं वो सर झुकाए बैठा है। और परवरदिगार कहता है ये सिफत हमको ज्यादा महबूब है, इसलिए कि ये दौलत हमारे पास नहीं है। अल्लाह गरीब नहीं, अल्लाह मोहताज नहीं, अल्लाह जाबिर है, अल्लाह मजबूर नहीं, अल्लाह कादिर है, मकदूर नहीं, अल्लाह कमजोर नहीं है, ताकत वाला है। और यही सारी चीजें बंदों से चाहता है कि हमारा बंदा सबसे बेहतरीन आजिज़ी वाली चीज नमाज, हथकड़ी लगाया, खुद बखुद बांधा है और फिर तारीफ किया परवरदिगार की और झुक गया उसके सामने। अब भी नहीं मानोगे, आपके पैरों पे अपनी पेशानी हम रगड़ेंगे, अब तो मान भी जाओगे। तो मेरे दोस्तों हम सुलह कर लें, हम सुलह कर लें, बहुत आसान चीज है। हम देना चाहे अल्लाह असबाब हमें मुहैया कर देगा। जिसका दिल तोड़ा है, जिसकी गिबतें की हैं, चाय पिलाओ, माफी मांगो और अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह फरमाता है खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, ये इकरारी मुजरिम बहुत बेहतरीन मुजरिम है। अगर तौबा करके
और तौबा का ये मतलब नहीं कि एक बार तौबा हो जाए तो दोबारा गुनाह ही नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर एक दिन में 70 मरतबा तुमसे कोई जुर्म हो तो जुर्म होने के बाद तुरंत तौबा कर लो। इस नियत से न जुर्म करो कि कल तौबा कर लेंगे, चलो अभी 2 रकात सलातु तौबा पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसी सच्ची पक्की तौबा कीजिए कि अब आखिरी सांस तक ये जुर्म नहीं होगा। 2 मिनट के बाद हो जाए कोई बात नहीं, फिर वही तौबा कीजिए। शैतान हमारा अजली दुश्मन है, वो लगा है, इसलिए अल्लाह ने इतनी लंबी छूट दिया है, तो उस छूट का अगर फायदा मिल रहा है तो आइए हम सब भी तौबा करके अल्लाह के घरों को भी आबाद करें और अल्लाह के बंदों को भी आबाद करें। अल्लाह हमारी जिंदगियां भी आबाद कर देगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हमें और आप हजरात को अमल की तौफीक दे। वो मालैना इल्लल बलाग।